ये मेरे को इससे बहुत इम्पोर्टेंट, मैं दिल से मेरे को प्रॉब्लम। प्लीज फॉर एग्जाम्पल एडिट हो जाएगा ना? हाँ, मिथ पूछो यार, बहुत बढ़िया सोच के बैठा वो। तुमने मैंने अब तक एक पंच नहीं मारा, आतिश सर 100 पंच मार चुके हैं। नहीं पर्सनल। एटलीस्ट जेट स्ट्रीम का विजुअलाइजेशन का आपके बच्चे कहेंगे तो बिल्कुल सर। हाँ। आप गुरु डाक सिखाओगे, मैम विल ब्रिंग स्पोर्ट्स। आपका लोगो कहाँ है? सर लोगों के दिल में है, इसलिए लोगो। अरे 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 महाराणा प्रताप, Welcome to the big book of philosophy. आप आंखें बंद कर लेना। वन मिथ अबाउट योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो एस्पिरेंट्स के लिए ब्रेक करना बहुत जरूरी है। साइंस टेक एनवायरनमेंट का मिथ जो मैक्सिमम मुझे लगता है कि ये पोर्ट्रे करना कि ये सिर्फ करंट के कंपाइलेशन से हो जाएगा। The relationship with current affairs. इंटरेस्टिंग, बताइए। The relationship with current affairs in GS2 is very fluctuating. The general myth of history is it's tough. It is not. It is not. राइट मैम। So it's very interesting. So geography, probably people just take it as a very scientific subject, and this is why they are very much inclined towards it. They understand, yes, if I can clear my concepts, geography is done. हेलो एवरीबॉडी, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, कभी रहे हैं या होने वाले हैं, यू मस्ट हैव हर्ड अ टर्म द फाउंडेशन प्रोग्राम। सिंपल वर्ड है, सिंपल टर्म है, एक मीनिंग होना चाहिए, पर हर जगह इसका मीनिंग अलग क्यों है? कुछ जगह बोला जाता है यहाँ पे प्रीलिम्स पढ़ाया जाएगा, कुछ जगह बोला जाता है प्रीलिम्स के साथ साथ कुछ आंसर राइटिंग कराई जाएगी, कुछ जगह बोला जाता है कि बहुत डीप में पढ़ाया जाएगा लेकिन आंसर राइटिंग के प्रोग्राम अलग से ज्वाइन करने पड़ेंगे। Why is it that the foundation program is of different meaning? I have the absolute pleasure to have the finest minds in the UPSC fraternity with me today on this table, on this dais, to give you the correct meaning, the correct definition of the foundation program. It is my absolute pleasure to introduce to you Atish Mathur sir, the name synonymous with GS2 for years and years now. It is an absolute pleasure to introduce to you Mudit Jain sir. All of you must have either read his text or watched his lectures or his current affair lectures. He is here to correct how essay and ethics are prepared in the foundation program. We have with us Dr. C.P. Kaushik sir, the man who has truly redefined how science and tech and environment has to be prepared, should be prepared. We have two great academicians with us. Kritika ma'am with more than 20 years of experience of teaching history. And Kapil sir, Dr. Kapil sir, who has an impeccable experience of teaching, studying and being a geographer himself. I will start the question direct to the point. Sir, if it is the case that students are studying for more than 10 hours, 12 hours for 1 year, 1.5 year, 2 years and still failing to basically understand the examination, is it the fault of the student or is the system collapsing? The system is collapsing. See, let's understand what is the system. When you've decided to prepare for this exam, there are certain fundamentals you have to get right. Those fundamentals take time. The simplest understanding is whenever you want to write the exam, आपकी उस एग्जाम के हर स्टेज के लिए एग्जाम रेडीनेस होनी चाहिए, प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। अगर वहां पे कोई भी गैप है तो वो सिस्टम का फॉल्ट है, वो इंस्टीट्यूशनल फॉल्ट है, वो हमारा एज टीचर्स क्लासरूम में फॉल्ट है। Everything that happens beyond this is a value add. Right. But core concepts, core understanding is built as a part of the foundation. Kaushik sir, then why is it that we are failing
to correct or correctly teach the foundation program in the institutes? Sir, as sir said, na, the term foundation actually has the meaning. When you construct a building also, then the maximum time it takes is to create the base. After that, you can build the extensions, you can build the floors. The same way, you can learn other things gradually. But those will work when the foundation is up to the mark. The building will survive only when the foundation is feasible. So foundation has to be in that way कि स्टूडेंट को लगे कि अब यहां से जो एक्स्ट्रा होगा वो मुझे करना है, इसमें मुझे दोबारा मुड़ के नहीं देखना. तो फाउंडेशन में कुछ कोर जो थीम्स हैं उसे थोड़ा सा तरीके से करने की जरूरत तो है. तो कुछ मैं फ्रेटर्निटी की तरफ से भी कहूंगा कि कहीं तो लैक कर रहे हैं हम लोग. दैट वी हैव टू क्लैरिफाई और वी हैव टू फिगर आउट. Right. And I hope, sir, कि with this team here, with this vision, we are able to correct it and deliver it rightly to the students, which is very well the need of the hour, the need of the day. मुझे सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने तो एग्जाम को पूरा इवॉल्व होते हुए देखा है, आपने खुद अटेम्प्ट्स दिए, खुद सिलेक्शंस लिए, उसके बाद यू आर नाउ इन द टीचिंग फ्रेटर्निटी. द यूपीएससी इज चेंजिंग, यूपीएससी इज कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग. इट इज प्रोबब्ली द एग्जाम जो सबसे ज़्यादा तेजी से इवॉल्व हो रहा है. देन व्हाई इज इट दैट द पेडागोजी ऑफ द टीचर्स एंड द इंस्टीट्यूट्स इज नॉट इवॉल्विंग? Or is it just me who is thinking like that? या सच में एक इशू है? या नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही सोच रहे हो ऐसा. दिस इज डेफिनेटली इशू. क्यों? क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लोग शायद मेहनत करना नहीं चाह रहे. एक बार कर लिया, नोट्स बना लिए फैकल्टी ने, और अब ईयर ऑन ईयर जो अपडेट्स हो रहे हैं वो भी तो आपको खुद ही लग के करना पड़ेगा. अगर आप कंटेंट टीम पे कुछ ज़्यादा ही रिलाई कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा गलत है, जब तक आप खुद स्टडी करके, अगर आप उस एग्ज़ाम प्रोसेस से गुजर के चुके हो, आप खुद एग्ज़ाम के इवॉल्विंग नेचर को स्टडी नहीं करोगे. आप खुद, आतिश सर भी मुझे पता है नोट्स खुद बनाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैं नोट्स खुद बनाता हूँ, खुद न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ. जब तक खुद नहीं लगोगे वो क्वालिटी नहीं आ सकती है. ठीक है, तो ओवर रिलायंस ऑन समबडी एल्स एंड देन व्हाट हैपेंस इज के आपने चेक नहीं करा, क्वालिटी अपडेट नहीं हो रही है, आप वो एज ओल्ड चीज़ें पढ़ा रहे हो जो पूछेगा ही नहीं यूपीएससी. रैदर होना क्या चाहिए कि इवॉल्विंग नेचर के साथ आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर क्या पूछ सकता है और उसके हिसाब से मैं प्रिपेयर करूँ. मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी दे देता हूँ. ठीक है, यूपीएससी ने सडनली GS1 के पेपर में, मैम यू वुड नो बेटर, इन GS1 पेपर they have suddenly started asking later Vedic society in mains. Suddenly पोर्चुगीज पे प्रीलिम्स में एकदम से क्वेश्चन आने चालू है. एथिक्स में विवेकानंद जी पे क्वेश्चन एकदम से आने चालू हैं, ज़्यादा क्वेश्चन. ये मैं नहीं बोल रहा कहीं आ नहीं रहते, अब आ रहे हैं. सो एज फैकल्टी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, हम ये इवॉल्विंग पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करें और हम अपने नोट्स का खुद पार्ट उसे बनाएं, हम बच्चों को पढ़ाएं, सो दैट व्हेन द क्वेश्चन डायरेक्टली हिट्स इन द एग्जाम वो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा हैंडल करना. Ma'am, on the similar lines of what sir said about the teaching pedagogy is being outdated. Ma'am, is it the exam that is becoming tougher, or is it the students who are studying in an outdated manner? Where is the fault line? Basically, Satyam, it's like I see it on two sides. One is students generally who appear and give this exam are still in the mindset that you mug up certain things, you just put it on the paper, you clear this exam. But that's not going to work. Right. And this has been told, the rote learning method is being told by the parents, by the school teachers, by the peer group, that you study this, you'll be able to hit UPSC. Right. That's why a 12th topper or a 10th topper or a topper is not able to clear this exam. Right. But on the other side, UPSC is now becoming more dynamic. Students are not able to integrate the subjects. Right. They study it in compartments. Now UPSC is becoming more integrated. Like as I told you in the previous meeting, history, if I take history as a subject, history links with polity, economy, society, ethics, and even geography. So questions are almost integrated where students are not able to connect it. So I would definitely say the blame would be on the students now to understand how the questions are made and how an answer to be written. Right. They just think, come to a class, take the notes, mug it up, write it, you would clear. But that's not going to work now. So those days are gone. It is a bitter truth. Yeah, it's a bitter truth. So student needs to give himself or herself 100%
to think that how they should connect the facts, Right. whatever subject. Right. So they're falling out there. So Right. that is where a normal student and a ranker or a topper. Right. So that's the only answer. And ma'am, what is the role of the teacher in this? A teacher's role is very, very important because a student may or may not study. They just pay their fee, come here, just sit in the class to take the notes. But now we teachers study, we update ourselves, we make notes, we give them everything in a customized way and make it easier. Right. So now students have to study our notes and add certain points, get it checked, and then they can clear the exam. So now the teacher's job is much difficult than a student's job. राइट एब्सोल्युटली कपिल सर आपसे क्वेश्चन रहेगा मेरा इन्फॉर्मेशन तो आज हर जगह अवेलेबल है यूट्यूब टेलीग्राम अब तो इंस्टाग्राम पे भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने लगी है देन व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अ टीचर खासकर इसमें एआई भी जोड़ देते हैं अब तो देन व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अ टीचर स्पेसिफिकली इन एन एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी See, इस पे the view I have is almost, I agree with everybody's view here, and I want to maintain this, that everything evolves. Darwin's theory, everything evolves. For example, we used to get this information कि 80s 90s में IAS ऑफिसर बनना बहुत आसान था. आप सीधा क्लास में जाके पढ़िए, एग्जाम दीजिए, आप अच्छे दिमाग के, आप अच्छा चीज़ों को याद कर सकते हैं, you will become an IAS officer. But over a period of time, UPSC exams have evolved. इसमें एक बात हमको और ये ध्यान रखनी है कि इन दी फाउंडेशन कोर्स आज हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है. Nowadays, what is happening, जितने भी फाउंडेशन कोर्सेज हैं, they are actually telling you, okay, fine, your polity is done, yes, your history is done, yes, geography is done, economy is done. The students also think, yes, my syllabus is complete. But I would give you a question here, sir. It was asked by UPSC, I think we discussed the other day. It said that the reasons of poverty in India is the regional imbalances. Now, it is involving society, social issues. It is involving economy. It is involving geography, and probably history as well, because poverty as a historical phenomenon, if I can say so. Now, tell me, अगर किसी बच्चे को टीचर केवल और केवल पढ़ा देते हैं, and if the teachers are not teaching the student how to think, थोड़ा सा भी कुछ कहते हैं ना कि क्रिकेट की टर्म्स में बॉल थोड़ी भी स्विंग होती है और बल्लेबाज घबरा जाता है, उसी तरीके से अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन इधर या उधर हुआ, स्टूडेंट घबरा जाएगा एग्जाम हॉल में, एंड ही विल, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू थिंक, लीव क्रिटिकल थिंकिंग, ही इज नॉट एबल टू थिंक. केवल मगअप और केवल मेमोराइजेशन पे अगर काम है तो वहां पे वो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएगा. तो दैट इज वन थिंग, टीचर्स कैन एक्चुअली फिल दैट गैप, हाउ टू मेक यू थिंक. The teacher has to be an aspirant. एब्सोल्युटली. अगर आप एक टीचर हो, इस इंडस्ट्री में, इस इकोसिस्टम में आप एज अ टीचर पढ़ा रहे हो, you are failing the system. करेक्ट A teacher has to be in forever aspirant mode, just that an aspirant who is a perpetual aspirant. Correct. And a voluntary perpetual aspirant. अब कौशिक सर हैं, मुदित सर हैं, I know they will always keep studying, keep reading. कोई हमको क्या पढ़िए, जब हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम क्या पढ़ाएंगे. There is nothing called a UPSC teacher. A perpetual aspirant is a UPSC teacher. सौ बात की तो एक बात तो ये And to add on to that, sir, each one of us has been हाँ, at a particular point of time in our life has been an aspirant. उसी को तो ट्रॉमा कहते हैं. Trauma bonding. The integration part which you people were mentioning, Kapil sir will acknowledge that. कि देखो GS1 में geography, GS1 के geography के questions में they are asking to connect with climate change. तो आप GS1 के टीचर हो या GS3 के टीचर हो, आपको इंटीग्रेशन चाहिए. तो you have to be like an aspirant only to connect the things to get yourself updated. तो ये तो सर बिना क्वेश्चन का एक फैक्ट है कि हमें करना ही पड़ेगा अपडेट खुद को. मुझे सर जैसे प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स हैं, समझ में आता है कि अच्छा इंटरलिंकेजेस के ऊपर बार बार बात हो रही है. एथिक्स एंड एसए तो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पे इंटरलिंकेजेस की उतनी ही जरूरत है जितनी बाकी सब्जेक्ट्स में है. मैं एग्जांपल देता हूँ, बच्चों को एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा. एथिक्स का इस बार 2025 मेंस में एक क्वेश्चन GS1 में आया है, हाँ सर, सोसाइटी में. बिल्कुल सोसाइटी. अब ये इंटरलिंकेज नहीं है तो क्या है. फिर मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ. GS2 में ई गवर्नेंस टॉपिक है. सो सर वुड नो बेटर. इन ई गवर्नेंस क्वेश्चन सर एक कॉमन थीम आ रहा है, इफेक्ट ऑफ ई गवर्नेंस ऑन द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी. Right. And the same question has been asked in ethics as well.
Citizen Charter is in GS2 as well as GS4. In GS4, in entire history, they have asked it only once, and in GS2 they have asked it 4 times, 3 or 4 times. Okay. In GS1 they have asked a question on solar energy, and then the next year they asked it in GS3. So now when a certain question has been asked in GS1, you have to write it from perspective of GS1. If the same question is asked in GS2, the perspective changes. It will be polity oriented, international relations oriented. In GS3, there are 5 different papers, the perspective changes, and again in ethics, it changes. So, with respect to ethics per se, I will certainly say if you are reading only one chapter, if the question is asked on attitude, and if the entire answer talks only about attitude, as a faculty, I won't give you more than 3 marks out of 10. So one of the approaches that I teach, and I am going to teach in foundation here as well, that is syllabus based approach, wherein we pick a point from each chapter. Whatever be the question be on attitude or aptitude or emotional intelligence, we will pick a point from different chapters to give a wider perspective, wider knowledge input to the examiner. So there is a huge role of interlinkages in mains across papers. थोड़े सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाते हैं सर. Why is it that पॉलिटी इज वन सच सब्जेक्ट जिसको बच्चा आके बोलेगा सर मैंने तो 10 बार पढ़ लिया, एंड स्टिल सामने बैठा के एक आंसर लिखने में जैसे सर ने कहा हाथ कांप जाता है. वाई दिस डाइकॉटमी, इतना बड़ा इशू क्यों है पॉलिटी में स्पेसिफिकली, कंसिडरिंग ऑन ऑल्सो आई वांटेड टू हाईलाइट ऑन द फैक्ट कि GS2 का पेपर तो कैसे ही इवॉल्व हो रहा है, लाइक नेक्स्ट लेवल पेपर जा रहा है. सर पॉलिटी इज एन इल्यूजन. ये से देख के लगता है ये तो हो जाएगी, क्या बात है. हाँ. And it has one of the highest exposures in current affairs. Even if it is not one of the highest exposures in current affairs, it is one of the most highest aspect of the newspaper. Most developments are political in nature, so everybody mistakes that अरे मेरे को हर दिन करना है. कि अब वो कभी अभी फॉर एग्जाम्पल अभी वो एक स्टेट में इलेक्शन हो गए, अब वो एक सर मेरा तो ना, मैं एक टाइम हुआ करता था सर जब मैं आराम से एकदम शेर की जैसे उठता था कि क्या दुनिया में फर्क पड़ रहा है, लेकिन अब मैं ऐसे उठता हूँ कि बस आज कोई मंत्री, कोई जज, कोई कुछ ना कर दे. अब जैसे वो स्टेट में इलेक्शन हुए सर, नाउ देयर इज अ चीफ मिनिस्टर हु मे नॉट बी वांटिंग टू रिजाइन, or there is another state where there is no clarity on who's going to become the chief minister. Ma'am, your state, ma'am. Now I am scared, ma'am, because my inbox is full. सर इसमें क्या होगा? अरे 2 दिन वेट तो कर लो, सही बात, पढ़ तो लो, go back to the basics. सही बात. So the issue with polity is that generally for the prelims you have to have a very strong conceptual base. अब वो ड्यू प्रोसेस का मतलब नहीं पता तो हम उसको फेयर एप्लीकेशन पे भी लेके जा रहे हैं, उसको नेचुरल जस्टिस पे भी लेके जा रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब नहीं पता तो हम डर रहे हैं. लिबर्टी का मतलब नहीं पता जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है. और सर पॉलिटी में वो भी ना कि एक सिंगुलैरिटी और सोर्स नहीं, you know, and then means to care of course is a different ball game only, largely because they're not asking law, they're asking systems. राइट. कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कैसे बैलेंस करता है, इसका जवाब तो चीफ जस्टिस साहब को भी 10 मिनट लगेंगे सोच के यू नो कुछ करने के लिए. हमारे पास तो 7 ही मिनट है. हमारे पास तो 7 ही मिनट है. Ma'am, if I talk about history per se, the UPSC demand, I will not say syllabus, but the UPSC demand about history is selective. At least that is what my understanding says. But still history feels as vast as an ocean. How do we understand this issue or difference? So the problem generally with history is the preconceived notion what everyone has is it's a vast subject. Yeah. And UPSC is clearly compartmentalized history as ancient, medieval, art and culture, Yes. modern, post-independence and world history. The problem with the students is they're very good in modern Indian history because in schools we start with modern. And to be very honest, students do not have a basic knowledge about India's past. Say, they do not know about the kingdom called Satavahanas. They do not know about the kingdom called Vakatakas. They knew about Chola, but they do not know about the local self-government of Chola Empire. So they knew about Vijayanagar, but they do not know about the feudal system there. So all these, should be integrated. Again, I use the term integrated because history goes with chronology.
Right. So without chronology, you can't connect the subject. And once you connect it, it becomes easier. And they're not going to ask you facts. This year there was a question in mains like about Akbar's Deen Ilahi. So the year is out. They're not going to ask you which year did Akbar start Deen Ilahi or why did Akbar start Deen Ilahi. Nothing. Absolutely. What were the proponents which made Akbar to start Deen Ilahi and the principles about it. A student should have a broad understanding and a connective mind to answer that question, which is very easy. Right. So once you study Akbar in a conceptual way, the answer is already there. And ma'am has an added challenge because students have it becomes all the more it is such a like ma'am, salute to you because ma'am, students are anyways making a sad face with history. With polity, they are willing. Teach me now. Teach me, yeah. बिल्कुल Like I have to control their excitement. Here, With ma'am has history. to get them more interested in the subject. So that is why my approach always would be a storytelling form. Because who would not like a story? We were grown up with story. Once upon a time there was a king. So all our everything is story. So I start history on a storytelling basis so that And then somebody bought the king. With that the multiple retention- queens. so that the retention is there. And the students don't forget the facts. So that's how I try to teach history. Sir, simple lines में, why do students unnecessarily panic about science and technology? इसमें दोनों ही चीजें हैं. देखो, वन विद बैकग्राउंड ऑफ साइंस, वन विदाउट बैकग्राउंड ऑफ साइंस. जी. जिसका बैकग्राउंड नहीं है वो वैसे डर जाता है कि ये मुझसे नहीं होगा, कि ये तो पहले भी नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा. और जिसका बैकग्राउंड है उसे लगता है ये मैं कर लूंगा. हाँ. और यूपीएससी दोनों को ही कहता है कर लो. द थिंग इज करके दैट दिखाओ. कि साइंस एंड टेक एक तो इससे ज्यादा इवॉल्विंग सब्जेक्ट हो नहीं सकता. डेली नई टेक्नोलॉजी, नया अपडेशन. तो जो सर ने कहा कि परपेचुअल स्टूडेंट वाली फीलिंग, तो वो तो भाई अगर आप रेगुलरली हिंदू नहीं पढ़ रहे हो, नई टेक्नोलॉजीज, तो एक तो स्टूडेंट को ये डर लगता है ना तो कोई हमारे पास लक्ष्मीकांत है, ना ही हमारे पास कोई आर एस शर्मा है, ना ही हमारे पास कोई मुदित जैन जैसे मेंटोर हैं भाई जो बता देंगे ये लो एथिक्स. तो साइंस एंड टेक में ना तो कोई बुक ऐसी है जो जस्टिफाई करे डिमांड ऑफ द एग्जाम, और आपने पढ़ भी ली तो कोई गारंटी नहीं उससे एक भी क्वेश्चन आएगा. तो लिखी जाए क्या सर? लिखी जाएगी, उसको वो भी अपडेट नहीं करी तो वो भी आउटडेटेड है. सर अपडेट कराएंगे ऐसी क्या हाँ, बात है? तो साइंस एंड टेक में डर का सबसे बड़ा रीजन एक तो ये है कि ये कंप्लीट नहीं होता, कभी भी हमेशा इवॉल्व करेगा, और यूपीएससी ज्यादा चांसेस है इवॉल्विंग चीजों को पूछेगा. और दूसरा, सॉरी टू से, कि ये बच्चों को डराया बहुत गया है यार. इतना पता नहीं साइंस एंड टेक का क्यों डर क्रिएट किया गया है. मतलब हमें इसरो थोड़ी भेजना है बच्चों को, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देनी है कि इसरो क्या प्रोजेक्ट्स ले रहा है, डीआरडीओ क्या लेके आ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, सुपर कंप्यूटर्स में क्या हो रहा है. मतलब ऐसे डराना वो थोड़ा वो ठीक नहीं है. Takes a doctor to correct another. That's the only way to heal. So एक रीजन ये है भाई साइंस एंड टेक का. तो अपडेशन इसीलिए कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम के बाद कहेंगे सर ये क्वेश्चन आया मैंने पहली बार सुना है. सामने से मैं कहता हूं मैंने भी पहली बार सुना है. ये डेली नई अपडेट आती है, कितना आप वो कर पाओगे काउंटर उस चीज को. तो ये है, तो साइंस एंड टेक की एक ये डिमांड है जो फुलफिल करना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो हो रखा है. बट अगर आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर चीज की बना लो और उसके ऊपर एक डिसेंट लेवल पे अपडेशन कर लो, तो मैं ये नहीं कहूंगा 100%, 70-80% क्वेश्चन बना लोगे. इतनी ही डिमांड है एग्जाम की. सर मेंस में ज्योग्राफी चेंज हो रहा है इस तरीके से कि अब क्वेश्चन सिर्फ ज्योग्राफी के नहीं है, अब क्वेश्चंस एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक अवेयरनेस थ्रू ज्योग्राफी के हैं. जी. इफ आई मे से सो, Absolutely. कैसे टैकल करेंगे फाउंडेशन में? क्योंकि सर फाउंडेशन में तो ज्योग्राफी का मतलब रिवर्स और माउंटेन्स हो गया है. Yes, I agree to a great extent. For example, चाहे ये GS फाउंडेशन की बात हो रिगार्डिंग ज्योग्राफी, या फिर बच्चे कभी ऑप्शनल भी लेने आते हैं ज्योग्राफी, तो उनके दिमाग में द फर्स्ट थिंग दे हैव इज फिजिकल ज्योग्राफी, रिवर, माउंटेन, प्लेटूज, फॉरेस्ट, ओशन. दैट्स इट, दैट्स व्हाट दे हैव. बट दे फॉरगेट वन फैक्ट दैट ज्योग्राफी का जो सोल है दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी. Geography has taken something from polity, becoming political geography, something from history, historical geography, something from society, social geography, something from other subjects like say demography, it will Human become geography, population economic geography. Absolutely correct.
Now, if you understand the soul of any subject, for example, you are talking about mains particularly, sir, अगर मैं एक आंसर लिखता हूँ पॉलिटी का regarding constitutionalism or regarding any topic, and I am not mentioning any single article from the constitution or any judgment, बहुत अच्छा समझा दिया, फिर भी आप मार्क्स अच्छे नहीं देंगे. Yes sir. उसी तरीके से अगर ज्योग्राफी में if you are taking geography only as physical geography and you are not integrating it with human geography, और उसका जो सबसे अप्लाइड पार्ट है, क्योंकि अब ये बच्चे भूल जाते हैं कि यू आर गिविंग यूपीएससी, यूएसए पीएससी नहीं दे रहे हैं हम कि हम यूएस में बैठ के कोई एग्जाम लिख रहे हैं. राइट. हमारे हर एक एंगल में, हमारे हर एक कॉन्सेप्ट्स में देयर मस्ट बी सम इंडियन एंगल, क्योंकि हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से अपनी ज्योग्राफी सोच पाते हैं कि नहीं. करेक्ट. आज हमको ये नहीं चाहिए कि वेदर यू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी और नॉट, कैन यू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी थ्रू इंडियन लेंस. Yes, sir. Understand geography. अंडरस्टैंड ज्योग्राफी, एब्सोल्युटली. बात तो सही. और इस सब्जेक्ट का एक बहुत ही बड़ा जो एक लैंग्वेज होती है, सोल कैसे, दैट इज ऑल्सो लाइंग इन मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, जो कि लोग इग्नोर करते हैं कि ठीक है मैं कंटेंट लिख दूंगा केवल, वो सबसे बड़ी चीज है. कंटेंट का एक प्रेजेंटेशन फॉर्म होता है, एंड इफ यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर दैट, ज्योग्राफी प्रोबेबली माइट नॉट रिवॉर्ड यू दैट मच. राइट. तो एक बात बोलनी है और दूसरी बात बोलने का तरीका भी ठीक रखना है. Right. तब जाके बढ़िया नंबर आएगा. And geography, I think, sir, is semi-visible, which is why it is very challenging also. History में sir, ma'am, you can say this happened. There is science and tech. You can show it happened, and you know, with current affairs, these are developments happening around you, sir. अब geography में sir, वो मेरे को तो दिखता नहीं ओशन करंट. सही बात. अब आपने बोला ओशन करंट से हो रहा है बारिश, तो There was a question on fjords in mains. GS के बच्चे का fjord से क्या लेना देना है? Typical optional question. Absolutely, sir. मतलब आपने कहा हवा इधर जा रही है तो इधर बारिश हो रहा है, हवा तो नहीं दिखी मेरे को. सर आपने बहुत सही क्वेश्चन रेज किया. क्या सी सर, इफ यू आर रीडिंग एनसीईआरटी और एनी अदर बुक, यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक, प्रोबेबली यू कैन मेमोराइज इट, बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर टू विजुअलाइज दोट फिनोमेना इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स. वही एक टीचर का काम है. अगर वो कर दिया तो लॉन्ग लास्टिंग हो गया, उसको तो बुढ़ापे तक याद रहेगा ज्योग्राफी. फिर तो मतलब मैं क्लास में ड्रोन उड़ा के दिखाऊं फिर? एटलीस्ट जेट स्ट्रीम का विजुअलाइजेशन अगर बच्चे कहेंगे तो बिल्कुल सर, व्हाई नॉट. आप ड्रोन उड़ा के दिखाओगे, मैम विल ब्रिंग स्वर्ड्स. महाराणा प्रताप. मोदी सर विल कम विद अ बिग बुक ऑफ फिलॉसफी. आप आंखें बंद कर लेना. मैं आंखें बंद कर. बिल्कुल. सर एथिक्स में जो थोड़ा सा परसेप्शन बन गया है, आई डोंट नो हाउ कम दिस, बट सिंस आई टॉट एथिक्स तो मेरे को समझ में आता है, मेरे को स्टूडेंट्स के इश्यूज आ रहे हैं वाले, कि एथिक्स इज अबाउट डेफिनेशन ऑफ टर्म्स एंड डंपिंग ऑफ फिलोसफर्स. कि भाई एक एथिक्स का आंसर उठाओ, स्टार्ट कर दो डेफिनेशन से, बीच में कोटेशन डाल दो, थोड़े से फिलोसफर्स डाल दो, हो गया आंसर रेडी. इससे तो नहीं हो रहा सर, तो कैसे होगा? मैं बता दूं, इससे हो भी गया, लेकिन कुछ भी चीज यूपीएससी में, कोई भी पैटर्न, कोई भी टेम्पलेट, कोई भी अप्रोच 1-2 साल चलती है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो आउटडेट हो गया ये वाला. हाँ, ये तो आउटडेट ही हो गया. ये हो गया है बिल्कुल. आउटडेट. इसका जितना यूटिलिटी था वो हो गया कि इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन परसुएशन, तो मैंने बहुत सिंपल थिंकर्स बनाए हुए हैं. P फॉर परसुएशन, P फॉर परलॉफ. जी जी जी. एंड यू डू नॉट इवन हैव टू रिमेम्बर करेक्टली कि परलॉफ ने बोला क्या. द बेस्ट पार्ट इज दिस, आपने परलॉफ लिख दिया तो पहले ये होता था कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, उसमें परलॉफ मिल गया. ग्लोबलाइजेशन के लिए आपने एंथनी गिडन्स लिख दिया, एग्जामिनर इज इम्प्रेस्ड, एंड यू जस्ट डिफाइन दैट इन योर ओन वर्ड्स, and then sprinkle 1 or 2 keywords here and there, write couple of examples here and there, and you are good to go. But then अब 2 साल हो गए, ठीक है. So now you have to bring something new to the table. क्यों? मार्क्स मिलते हैं मेंस में यूनिकनेस के, ठीक है. जब हम ये अप्रोच ट्राई कर रहे थे कीवर्ड लिखने के और एग्जांपल्स लिखने के, तब तक ये यूनिक था. अब हर कोई कर रहा है, और हर कोई नहीं कर रहा, तो एवरी सेकंड पर्सन इज डूइंग इट. नाउ इफ एज अ फैकल्टी यू ब्रिंग समथिंग न्यू ऑन द टेबल, मैं नहीं कह रहा रॉकेट साइंस लानी है, नहीं, समथिंग न्यू, समथिंग रेलिवेंट. राइट. बच्चा वो जब रिप्रोड्यूस कर आएगा एग्जाम में, एग्जामिनर विल एटलीस्ट गेट समथिंग न्यू. राइट. और फिर मार्क्स मिलेंगे. सो वो ही है जो सर ने बोला, परपेचुअल एस्पिरेंट के इवॉल्विंग ट्रेंड्स, पैटर्न्स, स्कोर रेंजेस, सब कुछ स्टडी करके यू कीप ऑन ब्रिंगिंग समथिंग न्यू. करेक्ट. सिर्फ मैकेनिकल थोपा हुआ आंसर लिखाओगे, 4 कीवर्ड्स लिख दिए, मार्क्स नहीं मिलेंगे. रॉकेट साइंस मैं लेके आऊंगा सर. रॉकेट साइंस भी करना है. राइट. इस चीज को समझना इसलिए भी जरूरी है. इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अगर हम लोग इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमें एग्जाम के पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके इवॉल्विंग ट्रेंड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर मैं हर साल
खुद बैठ के ये नहीं देख रहा हूं कि मेरे इस बच्चे के 450 460 नंबर जीएस में क्यों आए हैं, क्यों ऐसा है कि एक बच्चा बार बार एथिक्स में 130 134 स्कोर कर रहा है और दूसरा बच्चा 112 108 पे ही रुका हुआ है। अगर मैं बैठ के वो टॉपर कॉपीज दोबारा से एनालाइज नहीं कर रहा हूं ये देखने के लिए कि क्या पैटर्न चेंज हो रहा है, क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। सर आपके मेरे बीच की बात, इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर मुझे पढ़ाना है, बाकी जीएस3 आपको पढ़ाना है। सर जीएस3 में क्या हो रहा है, क्यों नंबर नहीं आ रहे हैं, कैसे चलेगा? वो सड़क पार कर ले जा मिल जाए। मैं तो स्टार्ट में ही वेट कर रहा था इस क्वेश्चन की कि जीएस3 पे क्यों नहीं आया। सॉरी सर, मैं कभी कभी देरी कर देता हूँ हाँ, सही चीजें करने में। इतनी देर में कहीं डिस्कस हो गया होगा। वही वही वही, देखो कोई नहीं, देर आए सही आए, क्यों सर? बिल्कुल सर। मुदित सर तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो सर जीएस3 का ना देखो, जीएस3 का नाम जीएस है बट वो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। जब क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, देखो सारी दुनिया आप जान गई है S400 ट्राइम, सही बात। यस सबको पता है, लेकिन S400 2021 या 20 के आसपास मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। S400 दुनिया तो हाँ मेरे मेंस में आया था। दुनिया तो अब जानी है ना S400 को, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। लेकिन यूपीएससी ने पहले पूछा था इसकी क्या ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं कि दुनिया के वन ऑफ द एडवांस में है। तो इसकी रेंज, इसकी जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इसके एडवांस रडार सिस्टम्स हैं, एरे रडार्स हैं, जो भी है, ये टेक्निकलिटीज बताए बिना ना वो आंसर जस्टिफाई होगा ही नहीं। उसके अलावा आप ये लिख दोगे कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, वो तो जनरल स्टडीज है भाई, साइंस एंड टेक में पूछा गया है वो। तो आपको उसकी साइंस बताओ, उसकी टेक्नोलॉजी बताओ। आयर का भी कॉन्टेक्स्ट था सर इसमें। आईआर का कॉन्टेक्स्ट भी है इसमें। कैट्सा वैट्सा डिफेंस ट्रीटी वगैरह। दूसरा, एक तो सर टेक्नोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी मिसिंग रहती है आंसर्स में। तो जब तक साइंस के क्वेश्चन में टेक्नोलॉजिकल टर्म नहीं होगी, वो साइंस का कैसे लगेगा? तो हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दिस इन द फाउंडेशन प्रोग्राम कि हम सिर्फ ये ना बताएं कि टेक्नोलॉजी ये है, बल्कि ये भी बताएं कि आंसर कैसे लिखे जाएंगे, ये बता दो। तो सर उसमें टेक्नोलॉजी तो कोर है, उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, बट हम जो एक्स्ट्रा करेंगे वो ये कर सकते हैं कि भाई इस टेक्नोलॉजी का रेफरेंस आपको जो पता है उसके अलावा ये एग्रीकल्चर है, ये रूरल डेवलपमेंट है, ये गवर्नेंस है। आज सर आप पंचायती राज पढ़ा रहे हो, लेकिन भुवन पोर्टल के बिना कैसे होगा पंचायती राज? इसरो ही दे रहा है वो तो। लैंड डिग्रेडेशन की एटलस किसने दी? सर आप लैंड डिग्रेडेशन पढ़ाओगे, उसकी एटलस तो इसरो दे रहा है। And that is when Mudit sir's work also comes in so crucially, because भुवन पोर्टल अगर अखबार नहीं पढ़ोगे तो नहीं पता चलेगा। नहीं, मैं जैसे मुदित सर को याद होगा, हम लोगों ने साथ ही मेंस दिया हुआ एक टाइम पे, GS4 एथिक्स में क्वेश्चन आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को कैसे आप लोग हैंडल करोगे। इस बार केस स्टडी आई है। हाँ, पहले क्वेश्चन था फॉरेस्ट कंजर्वेशन GS पेपर 4 में। तो सर वाली बात है, जहां आया है उस हिसाब से लिखना पड़ेगा ना। जूनो मिशन का क्वेश्चन मेरा मेंस था 2017, GS1 में आया था। GS1 बिल्कुल सर। And in fact in GS4 sir, GS1 में लास्ट GS1 में लास्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। जी 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 जी। पढ़ाऊंगा तो GS1 मैं। में in MAM बिल्कुल GS4 paper there is में है। civil तो सर- services and national एंड सर ये consciousness. बहुत अच्छा क्वेश्चन की सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेपर 1, अब उसका क्या हम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, उसका सोशल पर्सपेक्टिव देख सकते हैं क्या? अगर ये इंटरलिंकेज वाली थिंकिंग है तभी तो आप आंसर लिखेंगे। The year the national education policy was released, 1, 2, 3, 4 चारों बिल्कुल। चारों नहीं सर, AI भी, AI has come as a part of NEP on essay values also, also was there in as part of GS4. हाँ GS4 also, GS1 also। तो AI भी घूम चुका है पूरा। तो ये तो है ये। एंड अगेन सर आप फिर ये समझा दो कि हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दिस इन द फाउंडेशन प्रोग्राम, कि भाई ये चीज सीख जाए बच्चा, आंसर लिखना सीख जाए इस तरीके से। See, the biggest challenge in a foundation course is a student is subjected to so many subject teachers राइट। who would have very different views of the exam. आइसोलेशनिस्ट व्यूज आल्सो। हाँ, when we all decided to come together and deliver this to the kids, I think all of us fundamentally, pedagogically are on the same page. करेक्ट। Everybody agrees that there is no isolation between the 4 papers. एब्सोल्युटली सर। Everybody Correct. looks at general studies as a whole. जी। So instead of it being a friction between the teachers, it is actually a cooperative federal sort of a model. Because there's a balance. अब जैसे मुदित सर के केस में ethics is such a difficult
subject to deliver on paper. बिल्कुल You have to have some structural component to it, करेक्ट but you need to have, you know, your own persona in the answer as well. करेक्ट And sir has been doing it so beautifully, in fact, you know, to balance that perspective. And in case of ma'am also, history today is one of the most difficult things to visualize across papers. एब्सोल्युटली To write an answer on civil services and national consciousness in paper 1 is incredibly tough. Correct. Unless all of us are on the same page, that we look at general studies as a whole and we want to deliver it subject wise. That's If I recall properly, there was a question in GS1 history. कि how you will utilize the architecture of Indus Valley in smart cities mission. Yeah, बताइए. Sir, can I tell you one of the questions which I was asked in the interview? The first question they threw at me, Kapil, explain geography is history. And they left me there. And probably I could have, I mean, I did use my knowledge there. They were quite impressed what I felt. बाकी अगर आप Geography is history. हिस्ट्री कृतिका मैम से पढ़े होते तो और बेटर करके आते हो आंसर. Absolutely. मेरा रहा है ऑप्शनल. मुझे मैकेंडर थ्योरी याद आ रही है थोड़ी थोड़ी. हिस्ट्री इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज हिस्ट्री. In fact, geography is destiny. Anything it can be. ये बिना सोचे बिना एनालिसिस किए अपना सब्जेक्ट यू कैन नॉट हैव. मैम ये तो हिस्ट्री की तरफ जा रहा है. एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए अमेरिका के मेटलैंड, उन्होंने कहा था एंथ्रो इज ईदर हिस्ट्री और नथिंग. करेक्ट बताइए. And as we were discussing about GS3, sir. Thank God law did not have so many things. GS3 आपने तो पूछा नहीं, मैं बताता हूँ. इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर में भी GS3 में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक, विच इज द फैक्ट कि इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर प्रीलिम्स के लिए है कि भाई आपको बस ये पता है कि इन्फ्लेशन ये है, इन्फ्लेशन मनी एंड बैंकिंग से ऐसे लिंक्ड है. लेकिन अगर अब आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आ जाओगे GS3 के मेंस में, सर द क्वेश्चंस नाउ आर बिकमिंग टेक्निकल इन देमसेल्व्स. जैसे आपने बोला कि GS3 में टेक्निकल हो गया, इतने टेक्निकल क्वेश्चंस इकोनॉमी में आ रहे हैं कि अगर मैंने लिंक करके नहीं पढ़ाया, प्रीलिम्स की नॉलेज तो है ही, लेकिन अगर मैंने लिंक करके नहीं पढ़ाया टू अदर एस्पेक्ट्स तो होगा ही नहीं. ऊपर से एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. जैसे उस दिन आप में डिस्कस भी कर रहे थे, एग्रीकल्चर प्लस साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आ रहा है. हाउ विल नैनो टेक्नोलॉजी एड द लाइफ ऑफ फार्मर्स? अब देख लो ना, नैनो यूरिया. बिल्कुल. नैनो यूरिया क्या है? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर तो एनवायरनमेंट के बिना कैसे, और क्लाइमेट स्मार्ट बिना टेक्नोलॉजी के कैसे हो जाएगा? और क्लाइमेट बिना ज्योग्राफी के कैसे हो जाएगा? तो यही तो बात है ना. तो ये चीज समझनी पड़ेगी सर. इफ आई मे ऐड, जो एक इको का तुमने बोला कि टेक्निकल होता जा रहा है, सर मेजरली आपने ऑब्जर्व करा होगा इकोनॉमिक सर्वे से आ रहे हैं क्वेश्चंस. मेंस वेरी इंपॉर्टेंट सर. कम से कम चार- 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं. 4 क्वेश्चंस होते हैं इको में. वेरी इंपॉर्टेंट सर. 1 2 11 एंड 12, ये ट्रेडिशनली 4 क्वेश्चन ये इको के रहते हैं. इन 4 में से 3 एटलीस्ट इको के आपके इकोनॉमिक सर्वे से होते हैं. जो एक रह गया जनरली वो इंक्लूसिव ग्रोथ पे क्वेश्चन बनाते हैं. करेक्ट. ये हर थोड़ा तो बनाई देते हैं. जो यूपीएससी बोलते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल, मैं कहता हूँ प्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन कहीं ना कहीं है. अगर पैटर्न स्टडी करो प्रिडिक्ट कर सकते हो. बिल्कुल सर. आप तो एक्सपर्ट हो उस चीज के सर. एक्सपर्ट नहीं सर, मतलब टेक्निकल हो गया पेपर, बट यस अगर वो क्लास में बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाएगा, फाउंडेशन में इकोनॉमिक सर्वे या डिस्कस नहीं करा जाएगा, वो कहाँ से फिर उसको आंसर करें? Say like anniversary years, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, plus minus 1 of judgments of schemes. अब चाहे वो PLI हो गई या गति शक्ति जब आया था, या जब 30 years to Shah Bano तो UCC का क्वेश्चन आया था. UPSC loves anniversaries, UPSC loves fresh anniversaries. I'll give you example sir. 2017 मेंस, मेरा 4th मेंस था, 5th attempt. I did not give my 6th attempt. I was done with the process. So I knew that there will be a question on women in GS1. Ma'am, Margaret sisters had come up with a body in 1917, and उसके 100 years पूरे हुए थे. So I for sure knew before entering into the exam hall that there will be a question on women, and there was a question on women organizations and all, and I started with reference of 100 years of Margaret sisters organization. Now when I do that, what happens is examiner को मैं ये बता रहा हूँ, I not only know the answer of this question, I also know why you have asked this question. Yes. So that creates that extra edge, X factor, whatever you name it, and I am 100% sure I would have got extra marks in that question over others. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर. जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर्स अलग से पूछा जाए.
If you are not adding current affairs in your every answer, इसका मतलब है you know static, probably you can understand the concept, but you are not aware what is happening around. Also, current affair helps you give reasoning to the question. Absolutely. कि आया ही क्यों? One question to each and everyone particularly. One myth about your particular subject जो aspirants के लिए break करना बहुत जरूरी है, जो set हो गया है कि ये this is a myth about for say polity or history or geography, but it needs to be shattered. The general myth of history is it's tough. It is not. It is not. It's very interesting. And once you know your past, your future becomes, it's easy. Right. So that's the biggest myth I always see while teaching this subject. Right. A myth about geography, sir. So geography, probably people just take it as a very scientific subject, and this is why they are very much inclined towards it. They understand, yes, if I can clear my concepts, geography is done. But this is the biggest myth. They understand, okay, conceptual clarity is there, I know geography. But more than clarity, yes, clarity is required, but along with it, that interdisciplinary approach is required. बिल्कुल सर. If you are not adding that, your clarity will lead you to a very narrow answer. So that is one myth. Understanding चाहिए उसके लिए. Yeah, absolutely. Not clarity, but understanding, is it? वही सर. Narrow नहीं जा सकते. Very, very deep. Correct. Sir. Absolutely. A myth about politics, sir. Or I'll say myth about GS2, sir. The relationship with current affairs. Interesting. बताइए. The relationship with current affairs in GS2 is very, very fluctuating. कि prelims polity limited relationship with current affairs means patterning current affairs to figuring out what kind of questions are going to be asked. IR means looking at larger event patterns 6 to 9 months before the mains exam, where relevant questions are going to be asked in IR. IR साल भर के पहले का आएगा ही नहीं means. बिल्कुल. But heavy IR for pre-IR. So GS2 has a very permutation combination बिल्कुल. relation. बस इस पे एक बात ऐड करूंगा सर. इतना मैं शॉक हुआ सुन के. There was a foundation course जिसमें 56 classes हुई थी IR की. 56 classes on IR of 3 hours each. तो IR की 56 classes. पॉलिटी की नहीं. IR sir, IR international relations की 56 classes. जैसे आप शॉक हो रहे हैं ऐसे ही मैं शॉक हुआ था. 4 क्वेश्चंस आने हैं और चारों करंट अफेयर्स के. चारों करंट अफेयर्स. लास्ट दे आस्क्ड अ स्टैटिक क्वेश्चन इन IR. सर कोई एक कमीशन पूछी McBride कमीशन. करेक्ट. UNESCO. मेरे टाइम पे 2017 लास्ट पे जो सब डब्बा था किसी को नहीं पता किसी को नहीं था. आता था. पूछा था जब गुजराल साहब की डेथ हुई थी, गुजराल डॉक्ट्रिन. गुजराल डॉक्टर. हाँ. पर वो टेक्निकली करंट हो गया ना, पढ़ाते हैं. because गुजराल डॉक्टर तो पढ़ाते death भी हुई हैं. तो- IR के करंट. बस वो एक स्टैटिक वही था जो था. हाँ. because गुजराल साहब died, Anyway. so गुजराल डॉक्टर. करेक्ट. But McBride का कोई सर पैर नहीं था. करेक्ट. इट्स लाइक फिजॉल्स. ठीक है. अमित अबाउट एनवायरनमेंट या साइंस एंड टेक सर. साइंस टेक एनवायरनमेंट का मिथ जो मैक्सिमम मुझे लगता है कि ये पोर्ट्रे करना कि ये सिर्फ करंट के कंपाइलेशन से हो जाएगा. कि लास्ट में ये लो 100 पेज का एनवायरनमेंट, ये लो 100 पेज का साइंस टेक पढ़ के चले जाओ 1-1.5 साल का, इससे हो जाएगा साइंस. मैं नहीं करता हूँ सर ये. नहीं सर, मैं आपको नहीं कर रहा हूँ. सॉरी. मैं अपनी भी बता रहा हूँ. अगर मैं करता हूँ तो गलत है, क्योंकि देखो करंट अफेयर आप फिर कितना रटोगे. और मेंस में तो वैसे भी नहीं होगा ना सर. मेंस तो भूल ही जाओ. फिर ऐसी अप्रोच के साथ प्री नहीं होगा, क्योंकि 35 क्वेश्चन साइंस टेक एनवायरनमेंट के आने हैं, कुछ कर लो. देखो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए. आप कितने फैक्ट रट के जाओगे. तो फाउंडेशन सब्जेक्ट का, उसके ऊपर करंट बिल्ड करो. करंट के ऊपर फाउंडेशन नहीं समझा जा सकता. भाई न्यूज में माथुर सर आ गया कि गवर्नर हटा दिए स्टेट के, तो बाद में गवर्नर के प्रोविजंस पढ़ो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा हुआ नहीं है. ये लॉजिक नहीं बना ना. पहले गवर्नर पढ़ो, फिर तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा वो कि हटा दिया, कुछ कर नहीं सकता कोई भी. तो एक आपको एक बेसिक ये मेरे को इससे एक बहुत इम्पोर्टेंट दिल से मेरे को प्लीज प्रॉब्लम. प्लीज. फॉर एग्जाम्पल सर पर्सनल नहीं पर्सनल मतलब सर करंट से थोड़ा सा रिलेटेड है. मतलब वन थिंग आई डीपली अप्रिशिएट मुदित सर फॉर इज दैट आई एम सेइंग दिस एट पर्सनल लेवल सर. मैंने आपको कभी भी कोई अगर करंट में कुछ हुआ है, आई हैव नेवर सीन यू गो टू YouTube द नेक्स्ट डे एंड से कि करंट वीडियो बनाओ. बिकॉज आप में वो करंट के साथ ठहराव है.
which is why there is so much respect and admiration for you. मैंने आज तक आपको कभी नहीं देखा, आपका भी इतना सर करंट होता है. आपकी ये वीडियो क्यों नहीं आई कभी? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भारत खोल पाएगा? आपकी वीडियो क्यों नहीं आती सर ये? Ma'am, that judgment on that Tamil Nadu governor judgment came. Now this political crisis in West Bengal or some uncertainty in Tamil Nadu or that anti-defection Raghav Chadha left. Second day, everybody on YouTube They say you're very late. is making. You're very late. On the same day. How is this defection? How is this? It will take some time. Settle in. Read the process. Read the context. 2-3 हफ्ते बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा. 2-3 ढंग के आर्टिकल आ जाएंगे, पढ़ के समझ में आ जाएगा. मैक्सिमम उन लोगों को कॉन्टेक्स्ट आएगा ही नहीं समझ. एंड सर आई वोंट टेक द नेम, आप भूल गए ना. कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं सर, दे हैव ऑलमोस्ट बिकम न्यूज़ चैनल्स. हाँ. आपने जो बात की सर ये वही है. मेरा ग्लास क्रैक कर रहा है शायद. They have become news channels. That's it. बदलवा देते हैं सर. ये बदल गया. Sorry. खैर, ठीक है. आपका लोगो कहाँ है? सर लोगों के दिल में है इसलिए लोगों है. अरे. Okay. Next major thing is the integration of current affairs. अब ये बात सही है कि कुछ करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ाया जाना चाहिए, कुछ करंट अफेयर मेंस के टाइम पे अलग से पढ़ाया जाना चाहिए. एक मिनट, ये एडिट हो जाएगा ना? एडिट हो जाएगा ना? हाँ. मिथ पूछो यार, बहुत बढ़िया सोच के बैठा वो. मैंने अब तक एक पंच नहीं मारा, आतिश सर 100 पंच मार चुके हैं. हाँ ये गलत कर दिया, भूल गए अर्जुन सर. तूने इतना बढ़िया मिथ सोच के रखा है भाई. तो सर कुछ नहीं हुआ यहाँ पे. हाँ सर, मिथ अबाउट एथिक्स एंड एसे दोनों ही बता दो तो आप. There are many. I am not sure how many to name. First and foremost, that People are myths. sir, the myth that I was thinking, it is on the same lines. You really don't need OGs and gods to teach you सर ethics. सॉरी टू इंटरप्ट, आप भी कुछ मिथ्स में तो थे ना पहले. Sir, there are perceptions that are built. There are perceptions that are built for sake of your own interest. सर So I never called myself OG or God or anything. As Atish sir said, I am a perpetual aspirant. So second myth, that paper is unpredictable. Now, last year there was a question in ethics that with respect to the evolving role of civil servants, explain the role of a civil servant as a facilitator and enabler. Yes. You go and pick my test series that I had last year. I had the same question in test series. Same 2 words, sir. Same 2 words. I don't know how that happened. Enabler and facilitator in same context. That for 2047 Atmanirbhar Bharat, what is the role, duty of civil servant as enabler and facilitator? I have taught 5 evolving roles of civil servant. These are just 2 of them. Then there was Hyderabad deforestation issue last year, and I had predicted that there can be a question on this in case study form or some other form. So similar case study, not direct but similar, that they asked question with respect to security versus environment. Another, there was a cloud burst, and then in my case study what I had done, मैंने फिर भी थोड़ी decency रख ली थी कि cloud burst हुआ है, तुम SDM हो and you do not have anybody else at back your home, your mother is ill. मैंने ill रखा था. UPSC ने? UPSC ने मार दिया. UPSC said mother is dead. Cremation is required. We will do. So to a certain extent, paper is predictable. So why study from anywhere when questions will come from here? अरे सर ये तो छू जाएगी सर लाइन. और छा भी जाएगी. ठीक है. सो इंटीग्रेशन ऑफ करंट अफेयर्स आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये बात सही है कि प्रीलिम्स के लिए अलग से थोड़ा सा करंट अफेयर बढ़ाना पड़ेगा, मेंस के टाइम पे थोड़ा सा करंट अफेयर और अपडेशंस देने पड़ेंगे. बट करंट अफेयर्स, क्या ये एज टीचर्स एंड एज परपेचुअल एस्पिरेंट्स, इज इट नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि करंट अफेयर इज इंटीग्रेटेड इन ऑल आवर teaching pedagogies in the foundation program itself? And ma'am, I'll start with you on this because history is generally considered that current affair is not at all relevant here. No, not like that, Satyan. Current affairs is relevant, but we have less current affairs if you compile it over a year.
there'll be approximately 30 to 40 issues to cover. So what I generally do is before prelims, I give the current affairs compilation and I add it with the class notes. So students who've taken classes with me would know, if, say for example, there was a current affairs in Hindu regarding Tansen. So in my classes, I've taught Akbar's Navaratnas, not in detail, Right. but Akbar's Navaratna, what did they Right. do, which year did they join, how long did they work with Akbar, all those I teach in my classes. So in that year, there was an article about Tansen. So in that current affairs class, I teach in detail about Tansen. Where was he born? Whom did he serve? Where did he learn his music from? What are Right. his ganas? All the books what written by him, the compilation, the stotras and Right. all those. And when did Akbar call him? Why did Akbar call him? What were the titles given by Akbar? How long did he serve with Akbar? Why did Akbar construct the Tanuk Talo? So why did Tanzan get a high recognition in Akbar's court? So all those will be dealt in the current affairs classes. Right. So automatically any question comes regarding Tanzan, a student will be able to approach. Correct. This year we had a question on Dancing Girl, जी. which was very direct, very easy, but that was covered in current affairs. See, everyone knows the answer, it's bronze. It Yes. was made with bronze. But again, once we do it and integrate it with class notes, I think the details are done. So it is important. And a student can anticipate certain questions, as Sir said. You can easily anticipate questions, both in history for prelims and mains. Right. Ma'am, last year there was one article on Jyotiba Phule Yeah. in TH. An entire question on mains came Yes. on the same lines. And I tell students study all the doodle, study all the anniversaries, study all the 100th year. So all of them. Whenever I teach 1857 or 1924, which IBC site was excavated, we are writing 2024, 2025. I can give you a very solid example. In my classes, I was telling students, study Sarojini Naidu because she was the INC president in 1925, Kanpur session. We are writing 2025 prelims. Right. Periyar started self-respect movement in 1925. So I taught Periyar in detail. So there was a simple question. When was the Self-respect movement started. So you have to have that mind to I keep telling students. As Sir said, UPSC loves anniversaries. UPSC loves all the 10th year, 100th year. And history gives you all of it. And I also tell students, let's go ahead. Study dates as well. Because when they love anniversaries, then now they'll start liking dates. Babur was born on 14th Feb. Easy to remember. So they're not going to ask it directly, but at least you'll be able to connect it with Guru Nanak. Because there was a question who were the contemporary of Guru Nanak. The option had Ibrahim Lodi, but Babur was not there. Which means Babur was the contemporary of Ibrahim Lodi. Simple. So I tell students like this in class and make current affairs easy. So even I tell students, if you don't study history, current affairs, cool, chill. And Right. Right. And I've seen you maintaining daily diaries. I write. That's one thing. I don't type. I'm a neo-literate. I keep telling that. So I write and I tell this to students. It will be a very easy, simple way of, because history is the dumbest subject of UP. Very simple. You made it simple, ma'am. It's Yes, not. Very simple. The Raja wisest Rani, teacher. no, not at all. It's Right. सर पॉलिटी मतलब GS2 तो खैर करंट अफेयर्स के बिना अधूरा ही है. So how are we ensuring that while we are conducting the GS2 classes? whatever. For example, if the class is on 5th of June, जी. whatever is the state of affairs on 5th of June, as of 5th of June, Will be shall be delivered. delivered as it is on 5th of June. A. B. You would be enabled in such a way that tomorrow, if there is a change in state of affairs, it will not lead to panic. Right. You just have to integrate it and Right. just एक screw fit करना है. Right. बी सिंपल. मतलब Right. हमें चीजें कॉम्प्लिकेट करनी नहीं है. जो आज तक एज ऑफ टुडे जो हाल है वो क्लास में है. कल को हाल बदलेगा तो हमको अपने बाल बदलने की जरूरत बिल्कुल सर. है. बस एक ऐड ऑन किया और डन. सर एथिक्स एसए में भी करंट अफेयर का रोल इंपॉर्टेंट है. बहुत जगह एग्जांपल्स यूज करने में आ जाता है. बहुत जगह एनेक्डोट्स मैंने लिखते हुए देखा है. बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हुए देखा है. सो हाउ आर वी इंश्योरिंग और आर वी इंश्योरिंग करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन इन एथिक्स एंड एसए वेयर रिक्वायर्ड? मैं लास्ट ईयर भी जैसे मैंने एथिक्स पढ़ाया था, देयर वर 200 एग्जांपल्स फ्रॉम करंट अफेयर्स. ठीक है, मेरा आइडिया वही है कि मुझे यूनिक कंटेंट देना. तो मैं हमेशा अपनी क्लास में पहली ही क्लास में बोलता हूँ कि एथिक्स का जब आप पेपर लिख रहे हो, प्लीज़ अब अशोक खेमका सर का एग्जाम्पल लिख के मत आइए. मैं राइडर भी देता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा वो बुरा काम कर रहे हैं या अब रिटायर हो गए सर कि उन्होंने गलत काम कर रहे. नहीं, वो पुराना एग्जाम्पल हो गया, क्लीशे एग्जाम्पल हो गया. किरण बेदी मैम, अशोक खेमका सर. तो मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था कि मुंबई में घाटकोपर में एक होर्डिंग जो है वो कोलैप्स हुआ, 16 पीपल डाइड. ठीक है, एंड देन इट केम टू लाइट कि परमिशन नहीं दी गई थी.
सो हाउ इज इट पॉसिबल कि बिना परमिशन के ऐसा होर्डिंग लग गया जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में एंट्री मिली थी? सो कुछ ना कुछ तो है ऐसा. सो दीज आर द सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स दैट आई प्रोवाइड इन एथिक्स पेपर. प्लस मैं रोल बताता हूँ not only of current affairs but GS also in essay paper. The nature of topics is completely philosophical now. Gone are those years, those days jab there used to be 2 philosophical topics, 6 generic topics, and we used to say as faculties, as mentors कि भाई philosophical छोड़ देना और GS पे लिखाना. अब 8 के 8 टॉपिक philosophical आते हैं तो आप खाली पेपर तो छोड़ के आओगे नहीं. philosophical में चैलेंज क्या होता है लिखने का कि मैं सोच रहा हूँ हिंदी में या अपनी मदर टंग में, एंड आई एम राइटिंग दैट डाउन से इन इंग्लिश या वॉट एवर बी द मीडियम ऑफ द पेपर. नाउ व्हेन आई एम थिंकिंग समथिंग एंड आई एम राइटिंग इट डाउन, देयर इज अ डिग्री ऑफ मिसमैच देयर. करेक्ट. Then when I am writing only the views, I am thinking that I have written A. Now certain random examiner is checking my copy. उसको तो view समझ नहीं आ रहा है, वो उसको read कर रहा है thinking it as B. So until and unless I substantiate my views of philosophical essay with certain facts, certain figures, government scheme, कोई report हो गई, कोई GS का example हो गया, कोई current affair हो गई, my views will not be clear. तो views को substantiate करना, clear करना, उसमें current affairs, GS का बहुत role आता है. वो हम क्लास में सीखेंगे कैसे करना. Sir, are you integrating the entire current affairs in science and tech environment के foundation की classes में? जब तक क्लास हो रही है तब तक जी. क्योंकि क्लास लेट से हमने अगस्त में करी और पेपर हो रहा है अगली अगस्त में मेंस, तो फिर चैलेंज हो जाएगा बच्चे के लिए. नहीं सर, वी विल इंश्योर दैट यू गेट द अपडेशंस. डोंट वरी, कोई चैलेंज नहीं होगा सर. क्लास जब तक हो रही है तो उस टाइम तक जो इंपॉर्टेंट मिसाइल भेजी गई है वो आ जाएगा भाई. जो नई जीएम क्रॉप आई है वो हम बात करेंगे. तो क्लास के साथ विल ट्राई की मैक्सिमम रेलेवेंट की कोशिश रहेगी. बाकी वैसे तो कितना भी पढ़ाते रहो. अब एक बार माइक्रोचिप पूछ ली यूपीएससी ने तो 40 माइक्रोचिप नहीं लिखवाऊंगा ना मैं क्लास में उनको. हाँ सर, हाँ प्लीज मत करो. हाँ वो वही बात है ना, फिर 56 क्लास आईआर अब तक 56. वो क्वेश्चन भी केक वॉक था सर. बहुत आसान था. मैं जो रहना कि आप शायद वही बात कर रहा हूं आप मैं. उसकी सेकंड स्टेटमेंट अगर देख लेते वो वहीं से खत्म हो Easily हो जाता. जाएगा. वो माइक्रोसॉफ्ट का था, अमेज़न का नहीं था. हाँ, बस क्वेश्चन वो- खत्म. तो उसके लिए 56 चिप्स पढ़ने की तो जरूरत नहीं है. 5 सेकंड का क्वेश्चन. तो इसीलिए थोड़ा सा कि कोशिश करेंगे जितना रेलेवेंट. अब सिंपल बात है ना, एक बार यूपीएससी ने पूछा था, मुझे याद है जब हम लोग दे रहे थे एग्जाम की, कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी जा रही है. आज तक सारे नेशनल पार्क की नदियां रटवा रहे हैं लोग. अरे भाई क्या मतलब है यार, कितने नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की नदी याद करोगे? पहले सारे पार्क याद करो फिर नदी याद करो. रामसर वेटलैंड तुम अभी बाहर निकलेंगे एक नया बना मिलेगा. अब तो बहुत ज्यादा हो गया. हाँ. जब मैंने स्टार्ट किया सर तब 28 थे. भाई हम पढ़ रहे थे जब कई 99 अब. नहीं अभी रिसेंटली जब हम लोग तैयारी कर रहे थे 3-4 साल जब मैंने तैयारी की थी, कांस्टेंट थे 26, मुझे याद है. मैं जब आया तो 28 थे. अब 99 है. अभी एक हफ्ते 10 दिन पहले अभी वो अलीगढ़ वाला आया है नया, 10 शेखा झील करके कुछ ऐसे है. तो ये तो इसलिए आप हर चीज को नहीं कर सकते. लिस्ट की कोई लिमिट नहीं है. सर मैं इसी से अपना नेक्स्ट और सबसे रेलेवेंट क्वेश्चन उठाऊंगा कि देयर इज अ रेस अमंग द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टू डंप सो मच ऑफ कंटेंट फॉर द सोल पर्पस ऑफ क्लेमिंग इट बाद में कि भाई मेरे यहां से तो देखो 20 क्वेश्चंस आ गए, इससे 50 क्वेश्चंस आ गए, तो अच्छी बात है, आने चाहिए क्वेश्चंस, बट क्या ये करने के लिए हम इनफाइनाइट मटेरियल लैंडफिल बना के डंप कर दें बच्चों पे? इज इट जस्टिफाइड? इफ not, then how are we as faculties going to tackle it? Students first have to have a clear understanding that the first factor is they should have an understanding that now materials are too much. Faculties are overpopulated. YouTube channels are running everywhere. So the first thing, students have to have a clarity that I am going to study this much. This is enough for this exam, and I stick on to relevant material and I trust the teacher. First, it should come from within. Ma'am, but for a new student, Yeah. that might not always be possible. Because for a new student, a faculty or a teacher or a coaching institute is truly something that they would just blindly believe. Then in that case, how do we tackle what is our responsibility in this Our case? responsibility is like we have to tell them, we have to give them a word and an assurance that you trust the teacher, you study the material, stay focused with the relevant content what we give, and they will be evaluated with the frequent tests, with the mentorship program, and they can analyze themselves. That will be the only way out.
the crowd is too much, it's overpopulated, and you can't keep on telling each and every student. It's like a gambling. So it should come from within. And once they if have you that allow also- me to answer it, जैसे डंपिंग की बात हुई कंटेंट की, सो लास्ट ईयर जो मैंने करंट अफेयर्स की फाइल दी थी दैट वाज ऑफ 479 पेजेस. मैंने एक न्यूज़पेपर कवर करा था, मैंने इस बार 2 न्यूज़पेपर करे. इट इज समवेयर क्लोज टू 600 पेजेस. अब स्टूडेंट को हम कन्विंस कैसे करेंगे कि आपको 1000 पेज की एक फाइल नहीं पढ़नी है जो एक डिकेड से चलती आ रही है. आपको वो फाइल नहीं पढ़नी है 1000 पेज की. क्यों? क्योंकि वो 1000 पेजेस से रिफ्लेक्शंस क्लेम करते हैं रैदर देन डायरेक्ट क्वेश्चंस. रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया? क्या मैंने पार्डन पढ़ा है लास्ट ईयर, मैंने पार्डन का स्टैटिक नहीं पढ़ाया था. सर प्रीलिम्स में पार्डन का स्टैटिक पूछा था यूपीएससी ने लास्ट ईयर. मैंने लोकपाल पढ़ाया था लास्ट ईयर, मैंने वो स्टैटिक नहीं पढ़ाया जो यूपीएससी ने पूछा था. रिफ्लेक्शंस का मतलब क्या हो गया? मैं कंट्रोल एफ करूंगा फाइल में और देखूंगा पार्डन, तो मैं कहूंगा हाँ पार्डन आया, मेरे नोट्स है. मैं वो नहीं करता. सो आप स्टूडेंट को कैसे कन्विंस करोगे? आपको एविडेंस एज फैकल्टी खुद देना चाहिए सामने से आके कि देखो भाई ये मैंने फाइल दी थी, ये लाइन बाय लाइन ये क्वेश्चन आए हैं, ये नहीं आए. जो नहीं आए हैं वो भी आपको सामने से आके खुद बताना चाहिए कि ये नहीं आए हैं, ये थे करंट अफेयर के, ये मेरे से मिस आउट हुए हैं, ये नहीं आए. So I'll It be is better only next. human to miss out. मतलब अगर आप मतलब it only shows that you are committed and true to your work. Sir, I want to add something here. Sir, हम सब बहुत ही aspirant life से हैं. We have felt that FOMO, fear of missing out. हर एक बच्चा इतना ढेर सारा जो कंटेंट डंपिंग है वो उसी पे खेल रहा है. हर एक बच्चा डरा हुआ है. What if they ask this? What if? बिल्कुल बिल्कुल absolutely clear. हमको उन्हें समझाना पड़ेगा. If you want to clear this prelims examination, आपको 100 में 100 ठीक नहीं करना है. 50 to 60 के बीच में अगर नेट ठीक कर गया आप तो यू आर डन. तो इसीलिए आपको एक रिलेवेंट थोड़ा बट बार बार चीजों को पढ़ना पड़ेगा एंड देन प्रोबेबली यू विल बी एबल टू हिट प्रीलिम्स अगेन एंड अगेन. Correct. ये ज्यादा अच्छी बात होगी उनके लिए. फोमो उनको दूर करने का काम हमारा होना चाहिए. जैन साहब आप बीटेक हो ना आप? Computer science honors. कंप्यूटर साइंस ऑनर्स. तो जैसे मैं स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, मेरा फेवरेट क्राउड इंजीनियर्स है. लास्ट 10 साल में मेरे ख्याल से 5 या 6 बार रैंक 1 इंजीनियर किया है सर. यस. और उसका एक रीजन यही है कि वो फालतू चीजें पढ़ते ही नहीं. उनको ये कह दो भाई ये आएगा, इतना पढ़ ले, सेमेस्टर पास हो जाएगा. तो वो क्यों उसी चीज को 4 बार पढ़ के चले गए, नंबर आ गए, रैंक आ गई. रेदर देन ज्ञानी बन जाए पूरा. एग्जाम ओरिएंटेड कैसे बनना है, दैट्स वेरी. तो एक तो लिमिटेड करो, बिहेव लाइक इंजीनियर्स. Right. हाँ. Right. Moving on to the last segment of the session, I have some very quick questions that will also be a cross-panel thing. So, sir, the biggest loophole in the UPSC Foundation ecosystem. That you're really not preparing them for the mains. It is a foundation is a disguise for a prelims comprehensive course. मतलब उसको रीनेम करके prelims comprehensive course ही रख दो ना. Prelims advanced course. हाँ, prelims advanced course plus ethics. और वो भी ethics में आधा नाम का करा रहे हैं सर. सर आंसर राइटिंग अगर नहीं कराई आपने एथिक्स में, इट इज कंप्लीट वेस्ट. Pace, sir, pace. Prelims advanced prelims comprehensive course plus ethics beginner course is equal to foundation course. अरे पागल है क्या? पता नहीं क्या चल रहा है. Sir, single answer. Has the UPSC paper evolved faster than the coaching institutes? ओपिनियन कैन बी डिफरेंट. मैं एकदम पर्सनल ओपिनियन से बोलूँगा नो. बिल्कुल. अगर आप एज एजुकेटर लगे हुए हो अपने काम में, लगातार मेहनत कर रहे हो, आप बहुत आराम से यूपीएससी को कैच कर सकते सर मेंस का पार्टन क्वेश्चन नोट्स आया था. सोशल कैपिटल एंड विमेन एम्पावरमेंट सीधा नोट्स आया. वो आ जाता है. हो. अगर आप इफ यू आर गुड एट व्हाट यू डू और आप ईमानदारी से कर रहे हो, ईमानदारी से मेरा मतलब क्या है, मैं जब सर न्यूज़पेपर करता हूँ मैं रोज के 32 आर्टिकल्स पढ़ता हूँ. तो जब 17 आर्टिकल 18 20 25 आर्टिकल हो जाते हैं, उसके बाद 26th आर्टिकल पढ़ते हुए मैं ये नहीं कहता बच्चे को क्या पता चलेगा, छोड़ देता हूँ. मैं वो नहीं सोचता. मैं सोचता हूँ मुझे कवरेज करनी है और क्वेश्चंस हिट होने चाहिए. कॉम्प्रिहेंसिव येट कंसाइज मटेरियल. Yet concise. तो मेरी ओपिनियन इसमें नो है. Sir, so इसी उससे next question आपका, at what point does more material start actually damaging the preparation?
सर आपके क्वेश्चन से ना मुझे लेट रविंद्रन सर जो इसके भीष्म पितामह है इस इंडस्ट्री के, उनकी एक बात याद आई। मेरी उनसे बहुत कम मीटिंग हुई। उन्होंने कहा था कि आप आइसबर्ग हो, आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी है पर बच्चे को इतनी दिखनी चाहिए, बाकी पानी के नीचे रहेगी। तो आपका जब तक बेस अच्छा नहीं है ना, आपके पास लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, और तो आप खुद जब आपके पास ही फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन है 3 पॉइंट, तो आप बच्चे को कैसे जस्टिफाई करोगे? आपका बेस अच्छा होना चाहिए, उसमें आपकी समझ होनी चाहिए कि ये रेलेवेंट है, ये आप बताओगे, क्योंकि स्टूडेंट ये समझेगा इतने उसके 2 अटेम्प्ट निकल चुके होंगे। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उसे पहले अटेम्प्ट में ये समझा दो कि ये रेलेवेंट है, इस लेवल तक तुम्हें जाना है। तो आपकी तो रेपोजिटरी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन बच्चे के पास सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। Most overrated preparation strategy. I think the normally what people are going for foundation courses, यही है सबसे overrated because The way they are done. the way they are done. Because sir, I wanted to add here, the way they are done is actually in the form of duty. कि ठीक है, तो हमारे पेट पर लात मार रहे हो सर ऐसे पूरे। नहीं, बस वो ड्यूटी के तौर पे कर रहा है कि हाँ ये मेरी ड्यूटी है, क्लास इज डन, ये डन, वो डन। बट वो पैशन अगर नहीं होगा ना, तो फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा बच्चों के रिजल्ट में। तो द टीचर, द इंस्टीट्यूट मस्ट बी पैशनेट एनफ। एक चीज सर मैं ऐड करना चाहूंगा, मतलब कि फाउंडेशन की बड़ी, मुझे लगभग 12 साल हो गए सर, 12-13 हो गए। तो मुझे एक बड़ा ना वीक पॉइंट दिखा कि सर मैं 10 महीने, वो फाउंडेशन कोर्स शुरू हुए 10 महीने हो चुके हैं सर, और बच्चे ने एक भी एस्से नहीं लिखा आज तक। उसे कहा ही नहीं जाता कि एस्से लिखो, उसे कह रहा साइंस टेक करो, पॉलिटी करो, हिस्ट्री करो, सर, और और essay नहीं लिखा जाएगा। और मैजिकली एससे आ जाएगा बिकॉज़ अपेरेंटली एससे इज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल दिस। मैं हैरान होता हूं, मैं उनको समझाता हूं, यार एक बात बताओ, तुम मैम हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री में प्रीलिम्स में लेट्स से 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मेंस में लेट्स से 75 मार्क्स, तुम 250 मार्क्स को इग्नोर करके चल रहे हो यार। सर आप ऐसे पे जा रहे हो, कल 2 बच्चे आए फाउंडेशन कोर्स की इंक्वायरी के लिए, बाय चांस मैं वहीं पे खड़ा हुआ था सर, मैं हिल गया सुन के। बच्चे बोल रहे हैं सर फाउंडेशन प्रोग्राम पूरा हो गया, लेकिन आज तक एक भी आंसर नहीं लिखा है। दिस वाज देयर लाइन, एक भी आंसर नहीं लिखा है। आप तो ऐसे तो सर, तो ये कुड यू प्लीज बिलीव, अगर 10,000 12,000 बच्चे मेंस लिखने जा रहे हैं, कैन यू बिलीव 6,000 8,000 बच्चों पहली बार प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आंसर लिखते हैं। ये रेशियो चल रहा है, बहुत बुरा हाल है सर इसमें। तो इस चीज को देखना 3 पड़ेगा महीने में वो कवर करेगा, रिवाइज करेगा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके वो हीरो भी बन जाएगा। ma'am, one habit that is destroying the aspirants silently. This can be a habit of the aspirant or of the teachers or of the institutes. One thing what I see personally is hearing from everyone. Everyone has become a teacher. Like Google has become a doctor. Like everyone has become a teacher. And students let's take students have appeared giving prelims. So they guide students. So hearing from multiple people, a student automatically gets, negative information, too much of influencing. All these I see that to be taken away. Right. What should a serious, true foundation program deliver beyond basic lectures? The ability to be able to, मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो हमने पढ़ा है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। और अगर सब्जेक्टिव है तो उसका लिखना मुझे आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव हो तो मुझे वो सॉल्व करना आना चाहिए। सीधी सी बाइनरी है, अगर ये नहीं हो रहा तो फाउंडेशन फेल कर रहा और लिखना भी इस कदर का सर है। मार्क्स कि रैंकर कॉम्पीट करे, करेक्ट रैंकर से कम्पीट कर पाए। सिंपल राइट सर, एक लास्ट क्वेश्चन जिसपे देन वी विल गो टुवर्ड्स द कंक्लूडिंग राउंड। अफोर्डेबिलिटी सर, देयर इज अ थॉट दैट इज गोइंग ऑन कि भाई अगर आपने 2 लाख रुपए नहीं लिए, इफ यू डू नॉट टेक 2 लाख रुपीज फ्रॉम द स्टूडेंट्स और से 1.5 लाख रुपीज फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और समवेयर नाउ द कोर्स सिर्फ 3 लाख रुपीज सर, तो क्वालिटी टीचिंग डिलीवर नहीं होगी। इस टेबल पे, एंड आई वांट एवरीबॉडी टू नोट दिस, देयर इज अ कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ 70+ years of teaching. There's a combined experience of more than 15 UPSC interviews, selections in UPSC, selections in state PCS. इस टेबल पे सर, have we intentionally made preparation inaccessible for a very wide range of audience by making the foundation courses hell costly? मतलब डाइकोटमी है सर, ऑनलाइन इज सो चीप, so you are said, so online education has become so cheap.
and that's a good thing so that everybody can access it. Thank God you rectified that. हाँ no sir, वही है तो मतलब it is so cheap so that everybody can access it, which is a good thing. The downside is, and that is where our moral responsibility comes in, that just because it is cheap doesn't mean everybody should. ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. ऑफलाइन में क्या है कि ये बता के कि कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हम उसमें और कैपिटलाइज करते हैं. Sir, you know, Kaushik sir, ma'am, I come from years of offline teaching. We're offline first teachers. We've seen children, you know, mortgage lands. We've seen their parents, you know, sell jewelry. We've seen them, you know, live in such a pathetic condition, getting unwell, getting all sorts of illnesses a few months into Rajendra Nagar. Sir, अब तो मैं यहाँ नहीं रहता, जब मैं यहाँ रहता था, अब till 2020, before 2020, गंगाराम के इमरजेंसी जो इट्स अ गवर्नमेंट सेटअप, वो गवर्नमेंट वाला है सर, गंगाराम का इमरजेंसी वाला, वहाँ पे इमरजेंसी का मेरा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में राजेंद्र नगर के लिए मेरा नाम लिखा रहता था, बिकॉज देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स, मतलब every possible disease you can think of. It's not that it was because of anything else. Primarily because they had spent so much money in the coaching, they could not afford a decent living, healthy food, clean food, clean rooms, you know, a bug-free bed. correct. तो मतलब इतना क्या, इतना तो मार्जिन हो ही सकता है. There is still things can be done sustainably, no. There is an Emirates and there is an Indigo. Today Indigo is doing better than Emirates. Absolutely. बस, and आपका तो कलर भी मैच करता है. हमारा सर. Right. Thank you to all these wonderful teachers, these wonderful faculties, these wonderful perpetual aspirants for coming together and making sure that the way the foundation programs are done is rectified. It is a moral obligation on part of us, on our part, to make sure that you get the best at the best prices so that you have the best understanding of the UPSC paper, and that helps you at least be able enough to attempt it like the rankers will while you are giving your attempt. Thank you so much. Thank you so much to each and every single one of you for becoming the part of the team. It is really an absolute pleasure to be sitting here with all of you and having this discussion. And Thank you, having sir. this foundation. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, aspirants. See you again. Signing off. Jai Hind.